Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. इसमें हम पढ़ रहे हैं asset disposal account कैसे बनता है। हम जो मेन जो मशीनरी अकाउंट है asset अकाउंट, उसके अंदर सेल, परचेज, accumulated depreciation, provision for depreciation, लॉस, प्रॉफिट डाल के उसको गंदा ना करके एक सेपरेट क्लीन accumulated depreciation अकाउंट, asset disposal अकाउंट बना देंगे। वो कैसे बनता है? Asset disposal account is an account that shows complete transactions involved in sale of asset। वो क्या दिखाता है ना, complete transactions जो कि सेल ऑफ assets में इन्वॉल्व होता है। If an asset is sold, a new account is titled as, उसका नाम होता है asset disposal account बनता है। May be opened in the ledger में एक asset disposal account बनाते हैं for determining, किस लिए बनाते हैं? To determine और for determining gain और profit और loss on sale of asset। asset में प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। Journal entries for sale or disposal of asset depends on the method of accounting. Accounting depreciation. Depreciation is credited to the asset account. Depreciation is credited to the asset account and or to provision for depreciation account. अगर asset account बन रहा है और provision fund बन रहा है तो depreciation asset account में ना क्रेडिट होकर provision में होगा। खाली asset account बना रहे हैं तो depreciation asset account में क्रेडिट होगा। तो journal entries for sale or disposal of assets depends on the method of accounting depreciation। method of accounting depreciation accounting बनाते हैं। तो इसमें asset disposal account क्या है? Asset disposal account is opened in which book value of the asset sold and depreciation is transferred to determine profit or loss on sale of asset, to determine profit or loss on sale of asset। Then asset disposal account में क्या क्या बनता है? asset disposal account when provision for depreciation account is not maintained। जिस टाइम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनता उस टाइम हम कैसे इसको बनाते हैं? नॉट मेंटेन। asset disposal account is debited with the book value of the asset sold। it is debited with the book value of asset sold। जो asset बिकेगा उसका बुक वैल्यू में उस अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे टू asset टू मशीनरी। आफ्टर क्रेडिटिंग डेप्रिसिएशन, वो क्रेडिट क्या करेंगे? crediting depreciation to the asset account as at the beginning of the year। beginning of the year में जितना depreciation क्रेडिट होगा उतना क्रेडिट करेंगे। asset disposal account is credited with A, the depreciation on the asset on sold items sold, asset sold from the beginning of the current year up to the date of sale। current year का depreciation beginning से end तक asset disposal account में क्रेडिट कर देंगे। एंड बी सेकेंड पार्ट है द सेल प्रोसीड्स ऑफ द सोल्ड एसेट सोल्ड, जो एसेट बिक रहा है उसका पैसा, और डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट ऑफ द सोल्ड आउट आइटम फ्रॉम द बिगिनिंग, जो एसेट बिकेगा उसका डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ सेल तक उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट सोल्ड, जो एसेट बिका उसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेगा। एक्सेस ऑफ डेबिट साइड टोटल ओवर क्रेडिट साइड टोटल मींस एक्सेस ऑफ डेबिट साइड टोटल, डेबिट साइड का एक्सेस टोटल ओवर क्रेडिट साइड टोटल, ओवर क्रेडिट साइड टोटल। अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा तो दिस मींस लॉस on sale of asset and is transferred to debit of a profit and loss account। अगर डेबिट साइड बड़ा होगा क्रेडिट साइड छोटा है तो लॉस हो गया, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड टोटल ओवर डेबिट साइड टोटल मींस गेन और प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट्स इज ट्रांसफर टू द
क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड एसेट डिस्पोजल अकाउंट का बड़ा हो गया तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, पहले तो पढ़ लेते हैं। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड इज ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। दो चीजें, बुक वैल्यू ट्रांसफर होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, एंड डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड, डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड इज ट्रांसफर टू द एसेट अकाउंट। जो उस मतलब जितने गैप के लिए, इस साल 4 महीने के बाद बेच रहा है तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन एसेट डिस्पोजल अकाउंट को ट्रांसफर होगा। वैल्यू रियलाइज्ड इज ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ द अकाउंट, डिफरेंस अमाउंट इज आइदर प्रॉफिट और लॉस। अगर डिफरेंस आएगा तो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो जर्नल एंट्री करेंगे। पहला जर्नल एंट्री है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। जब हम एसेट को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एसेट अकाउंट में लिखते हैं बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट। फॉर बुक वैल्यू लेस कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन, बुक वैल्यू से डिप्रिसिएशन लेस करके ट्रांसफर करते हैं ऑफ द एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर इन व्हिच एसेट इज सोल्ड। जिस साल मशीन बिका है, एसेट बिका है, उसी साल का डिप्रिसिएशन को माइनस करके ट्रांसफर करते हैं। तो depreciation account debited to asset disposal account for depreciation from the beginning of the current year up to the date of sale of the asset। जो एसेट बिक रहा है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगा वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन करके चार्ज कर देंगे। थर्ड में जब बेचेंगे, बैंक या कैश अकाउंट डेबिटेड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट फॉर सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट, जो एसेट बेचने का जो पैसा, सेल प्रोसीड्स। फोर्थ में एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड प्रॉफिट ओवर द टू में आएगा, या बेस्ट वर्ड है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनीज में होता है टू स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये होता है जब गेन होगा, लॉस होगा तो उल्टा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिटेड। ये देखो गेन और प्रॉफिट, यहाँ पे लिखा है लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिटेड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड इन केस ऑफ कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, दिस डेबिटेड टू एसेट डिस्पोजल। ये लॉस के केस में ये होता है। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ योर एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अगर प्रोविजन मेंटेन होता है तो उसके लिए अलग कुछ कहानी होता है, तो उसको भी आपको समझा देता हूँ आज। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट, asset disposal account when provision for depreciation account is maintained। जिस टाइम provision for depreciation account is maintained, maintain किया जाता है, is maintained। asset is transferred to the debit of asset disposal account at its original cost। asset is transferred to the debit of asset disposal account at its original cost। जो asset बिकेगा it is transferred to the debit side of asset disposal account at its original cost, पूरा वैल्यू में ट्रांसफर होता है। depreciation provided till the date of sale is credited to the provision for depreciation account में इसी साल का depreciation क्रेडिट कर देते हैं, and it is transferred to the credit of the asset disposal account। और total depreciation till today from the beginning of the purchase of the asset, जिस दिन से यही asset को खरीदा था और आज तक टिल द डेट ऑफ सेल, उसको हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट का क्रेडिट में डाल देते हैं। सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जितने पैसे में बिका, सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बैलेंस ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज गेन और प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो गेन होगा, डेबिट साइड बड़ा होगा तो लॉस होगा। इफ क्रेडिट साइड इज बिगर, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो इट इज गेन और प्रॉफिट, एंड लॉस होगा इफ डेबिट साइड इज बिगर। अगर डेबिट साइड बड़ा हो गया यानी खर्चा बड़ा हो गया तो क्रेडिट साइड में लॉस आएगा। तो इसका जर्नल एंट्री डिस्कशन कर देते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम पहले पढ़ लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। बुक वैल्यू, बुक में जो वैल्यू लिखा है या कॉस्ट जितने में खरीदा द एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
आज at the beginning of the year is transferred to asset disposal account. ये asset disposal account को transfer होता है. Depreciation from the beginning of the year of sale. Depreciation from the beginning of the year of sale up to the date of sale is also transferred to the current account. ये दोनों current account, ये current year मतलब जिस दिन सेल हो रहा है उसी दिन तक का जो सेल है वो आप प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफर करके उस टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टुडे, जिस दिन से बेचा और आज तक जो भी आता है डेप्रिसिएशन वो प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं. Beginning of the year of sale up to the date of sale is also transferred to the account. Is also transferred to the account. इस अकाउंट को ट्रांसफर करा जाता है प्रोविजन पर, ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट को. वैल्यू रियलाइज्ड इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट. द डिफरेंस अमाउंट इज द आइदर प्रॉफिट और लॉस. ये डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट में जाता है, एसेट अकाउंट का वैल्यू डेबिट में जाता है. तो अगर क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ तो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड बढ़ा हुआ तो लॉस होगा. तो इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो इसका जर्नल एंट्रीज यू कैन सी हाउ विल बी डूइंग जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज में 1 एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट फॉर कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड. जो एसेट बेचेंगे उस एसेट का वैल्यू को हम क्या करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे. दैट इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड to asset account. For provision for depreciation account debited to asset disposal account. For transferring accumulated depreciation, जो accumulated depreciation मशीन खरीदने के दिन से आज तक जो depreciation including current year का depreciation वो सारे provision for depreciation account से asset disposal account को transfer कर देंगे. थर्ड होता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड. कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट. जब बिक जाएगा ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे. कैश मिलेगा बाय कैश, चेक मिलेगा बाय बैंक, पैसे नहीं मिलेगा तो बाय बायर अकाउंट जो खरीदा है. फॉर सेल वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड, जितने पैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा. फोर्थ होता है द बैलेंस इन द अकाउंट इज आइदर गेन और प्रॉफिट और लॉस. इन केस गेन और प्रॉफिट होगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड to gain or profit on sale of asset account, और या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कंपनी होगा तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. तो लॉस में इसका रिवर्स हो जाएगा. इन केस ऑफ लॉस द जर्नल एंट्री पास्ड इज, इन केस ऑफ लॉस द जर्नल एंट्री पास्ड इज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिटेड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय साइड आ जाएगा. फॉर लॉस एंड सेल ऑफ एसेट ये लिखेंगे. नोट में लिखेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आफ्टर ऑल एंट्रीज आर ट्रांसफर्ड सोन ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. एसेट डिस्पोजल अकाउंट में सब कुछ एंट्री करने के बाद आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा. डेबिट बैलेंस इन द अकाउंट मीन्स लॉस on the sale of asset and credit balance means gain on sale of asset. अगर डेबिट बैलेंस होगा गैप बाय साइड में आएगा लॉस और गैप टू साइड में आएगा प्रॉफिट. डेबिट क्रेडिट बाय टू. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर theories and how to prepare. This is asset disposal account. asset disposal account ये एक महान अकाउंट है. इसका 3 क्वेश्चन से आगे है, तीनों क्वेश्चन करेंगे. Then we will close our studies. This is what we call asset disposal account.